विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला अरे विठ्ठला विठ्ठला माझे जीवन खेळ तुझा विठ्ठला चिंता कसली हृदय माझ्या विठ्ठला अलख निरंजन Very good evening to all of you. The Art of Living and the Shri Shri School of Yoga is proud to host the second Indian National Conclave in the presence of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji and who's the chairman of IYA and all the yoga gurus who have gathered here. We would like to extend greetings and a warm welcome to the respected council members who are also seated here on the stage. The IYA is a collegium of yoga institutes of repute from across the country who have come together to take yoga in all its purity and authenticity across the world whilst maintaining its roots and tradition. As an opening, we would request the governing council members to light the lamp and help spread the fragrance of their knowledge to all gathered here. I would request Gurudev and all the yoga gurus to light the lamp here. गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ मानो हि गुंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न आगहि श्रीगामा परिपालय ज्योतिष्मदीन्वा साधयामि ज्योतिष्कृतन्वा साधयामि ज्योतिर्विदन्वा साधयामि भास्वतीन्वा साधयामि ज्वलन्तीन्वा साधयामि मल्मलाभवन्तीन्वा साधयामि दीप्यमानान्वा साधयामि रोचमानान्वा साधयाम्यजस्रान्वा साधयामि बृहज्योतिषन्त्वा साधयामि बोधयन्तीन्वा साधयामि जाग्रतीन्वा साधयामि
We would hereby request Sri Subodh Tiwari ji, Secretary General of the Indian Yoga Association, to take the proceedings forward. Sri Subodh Tiwari ji is the CEO of Kaivalya Dham, which recently completed its centenary celebrations. He is also the member of Yoga Certification Board, Ministry of Ayush, member of the Governing Council for Inter-University Center for Yogic Science UGC, member of the Governing Council of the NCTE, chairman of the subgroup of Yoga CII, member of the High-Level Task Force on Yoga Research by CCRYN. He will be introducing our speakers this evening. We welcome you, sir. Pranams, namaskar to all of you who are present here. My greatest respects and reverence to Gurudev and all the other members of the Governing Council who are present here. I'm delighted to be here on behalf of the Indian Yoga Association, which is an idea of unity in diversity, which was formed in the year 2006. And the founder president was Yogacharya Padma Vibhushan B.K.S. Iyengar ji. And thereafter, we have been on a journey which is very beautiful of connecting, collecting, and getting together all the various rich, diverse cultural heritage, lineage, traditions of yoga throughout India and throughout the world. We are fortunate that we have the blessings of Gurudev and members of our Governing Council, where we are hosting this second national conclave, where we have representatives from 26 states across India. And we are more fortunate that we have been able to share this pleasure, this happiness, this ulhas with all of you who are present here with us today. I would, with permission of our chairman, Gurudev, I'll introduce our members of the Governing Council who are present here and the Executive Council. We have on the right side our President of the Executive Committee, Ma Hansa ji, who is the Director of the Yoga Institute in Mumbai, one of the world's oldest institutions, founded in the year 1917. On the left side of Gurudev is seated Dr. H.R. Nagendra ji, lovingly called Guru of our Prime Minister, who has been instrumental in a lot of policies relating to yoga. On the right-hand side of Ma Hansa ji, we have Acharya Lokesh Muni ji, who is a special invitee to this national conclave. We have Dr. Ishwar Baswareddy ji with us, the former director of Morarji Desai National Institution, but most importantly, the founding Secretary General of the Indian Yoga Association, who put his blood and sweat to ensure that this association came into being. Swami Atma Priyananda ji, the Pro-Chancellor of Ramakrishna Missions, Swami Vivekananda University, is an eminent and a learned scholar, a physicist, who is amongst us and is the Senior Vice President of the Indian Yoga Association. Amongst our Executive Committee members who are here, we have Dr. S.P. Mishra ji, who associated closely with Gayatri Parivar
and has been guiding us meticulously in our activities. He's also the CEO of the PRCB. We have Dr. Ananda Bali Yogi from the Swami Geetananda lineage in Pondicherry. Bali Yogi, ever since he was born, is into the realms of yoga. We have Dr. Manjunath, a scientist at heart, a yogi at body, and he is the Vice Chancellor of Swami Vivekananda Yoga Anusandhan University. We have our very own and your very own Kamlesh Barwalji, who has contributed meticulously to the growth of the Indian Yoga Association. She was the former Secretary General. And we have Padmini Rathore, who's also meticulously working for the Indian Yoga Association. It's such a pleasure to introduce all of them, and such a pleasure to be in this beautiful environment of the ashram here. We all are really inspired, and by blessings of all of them, I'm sure we'll have a lovely discussion tomorrow. I would now request Swami Atma Priyananda ji to kindly give his blessings to all of us. Om Jo Shanti Antarikshagam Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Oshadhaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. I have the blessed privilege of being here in this beautiful campus, blessed by the constant presence, one of the leading yogis of the present time. You call it a yogi, you call it a spiritual person, you call him by any name. Our Pujya Gurudev, Sri Sri Ravi Shankar ji. I have earlier come here also. As you know, I represent the Ramakrishna Vivekananda tradition. And Vivekananda was a person who took yoga to the West for the first time in 1890s. He taught the Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Raja Yoga. So much so, one of his disciples in America wrote, "We were sorry there were only 4 main yogas, so that he could have taught more." And Swami Vivekananda's beautiful statement, very humorously he writes in a letter, "I want to give them," that means the Westerners, "I want to give them hard, dry reason, soaked in the sweetest syrup of love, spiced with work, and cooked in the kitchen of yoga, so that even a baby may be able to digest it." That was a great work they started. And now in the present day, our gurus like Pujya Gurudev are carrying on this work of bringing yoga to the common person and telling it in simple language and endorsing the scriptural teachings, verifying them, vetting them, and giving practices which are simple, easy, practical, at the same time able to meet the requirements of the highest minds, as Vivekananda said. Even a baby should be able to digest this. I am so delighted, happy, blessed, and privileged to be here. Thank you. Thank you, Swamiji, for your inspirational words. I would now request dear Dr. H.R. Nagendra ji, whose journey started at NASA, but he dedicated his life to the field of yoga and came and formed the Vyasa. My dear brothers and sisters, congratulations to Pujya Gurudev for bringing yoga to Washington, D.C. in such a big dimension. 8 lakh people. And from all the yoga institutions, from there they came, and we are all so delighted and we are so proud
how he has been able to bring this to the world at large. That's the need of the world today. And Indian Yoga Association was built to synergize the efforts of all the yoga masters in our country, and it is slowly growing and growing. And with the chairmanship of our Puja Gurudev, now we are expanding further to go to greater heights. On this very auspicious day of the Purnima Day, I bring greetings to all of you from our university also, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Samsthan, Indian Yoga Association, and I request all of you to become members of this Indian Yoga Association and see that the organization grows to greater heights. And that is the only solution to bring peace on earth, to see that the wars are reduced and we bring harmony, love, affection, and universal brotherhood throughout the world. And that is a great message that Puja Gurudev has been able to bring to the people at large from United States. And today we are launching a conclave starting from tomorrow to the inauguration. It is being inaugurated by him, to see how best we can bring evidence-based to yoga to greater and greater heights, how to increase the quality of our research in yoga field. And we are going to have deliberations tomorrow with wonderful research committee and other people who are going to come together to see how best yoga can be brought into the scientific realms in the best possible way. With this, once again, I praise and record the great contribution of all the members of IYA, GC members and DC members, and people who have come from all parts of the country, from almost every state, to participate in this conclave from tomorrow. And particularly, I congratulate our Subodh Tiwari ji for his wonderful work of organization as the Secretary General of Indian Yoga Association. I should not forget how our Dr. Basavareddy was instrumental in bringing this IYA right from beginning, and through the government circles, we have been able to get the greater and greater recognition for these things. And I wish that this year, under the guidance of Puja Gurudev, we will have the largest number of organizations to come forward to become members of this Indian Yoga Association and see that the message of peace, love, harmony will spread throughout the world. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you, Nagendraji. I would now request Ma Hansaji, the director of the Yoga Institute and also the president of the Indian Yoga Association, for her blessings. Most of the difficult things you find, she will make very simple. Well, pranam to all of you, great souls. Pranam Gurudev. Pranam everybody here. I am not going to talk more, but I want you all to understand one thing, that in our life, we have to keep 3 H in mind. The first H is hands. We have to work hard. We have to see that whatever the world is doing, we have to maintain our own balance. Nothing should go wrong within us. And so that is the first H, hard work, sweating out, going ahead in life. Second H is head. Head has to be okay. Don't get affected. Don't think negatively. You can see anything positively. Any situation, you should be able to see it from plus, positive side, or negative side. Choice is yours. Person behaves rudely. Choice is yours to get hurt or not to get hurt. Don't get hurt. Accept him. Learn from him also and enjoy his presence also. Nothing goes wrong. So this head has to be there. And third is heart. When your heart, your emotions, your bhavnas, when they come together, that becomes art. And where we are standing here, art of living. So this heart, unless it is along with hand and head,
it will not go further. Person will have to understand that person has to live holistically. There was once a question asked by Arjun to Krishna. Arjun asked Krishna, tell me how to become successful in life. So Krishna was flying a kite. He says, come on, let's fly a kite. So Krishna was flying, and then Arjun saw that this thread is holding that kite. That thread is not allowing kite to go up. So he told Krishna that, Krishna, what are you doing? This thread is bothering that kite, doesn't allow it to go up. So Krishna says, okay, I'll cut the thread. So he cut the thread. Kite went up a bit, but then it fell down. And that's what the message of Krishna was, that we feel in our life things are holding us, our parents are holding us, our children are holding us, our work is holding us. Things are holding us. Don't think like that. They are there to see that you progress in life. Their support, their everything. Whole family, your duty, your responsibility is there to take care. They are not creating problem. They are not bothering you. They are seeing that you don't fall down like that. So in yoga also the whole problem is that people learn yoga, do some asanas, and they think they are learning yoga. Now we are holding the thread. Indian Yoga Association is holding the thread. That, well, teach certain things. There has to be values. There has to be a management with your heart first. Don't get hurt. Don't hurt others. These things have to be there in your life. And this is how we should grow further. So today, that was my little message. Remember 3H. My name also is Hansa. That also comes from H. That H also has joined here with art of living and that feeling. So I'm really enjoying the whole atmosphere here, and all of you dedicated people silently sitting and listening. Definitely it's going to help you. All the best to you all. Namaskar. Thank you, Ma. Lokesh Muniji, Acharya Lokesh Muniji has specially come to be with us in the National Conclave. He is our special guest. I'll request him for his blessings. अध्यात्म साधना के सुमेरु इंडियन योगा एसोसिएशन के चेयरमैन पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी, उनकी दाईं और बाईं और इस इंडियन योगा एसोसिएशन के दो ऐसे मजबूत पिलर, डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी, माँ हंसा जी, पूज्य स्वामी जी, बसवा रेड्डी जी, भाई सुबोध जी और उपस्थित सभी गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यगण, उपस्थित बंधु और बहनों, आज विश्व को अगर पूछा जाए कि एक ऐसी क्या जरूरत है जो सारे विश्व को जरूरत है, सभी कहेंगे शांति की जरूरत है। और विश्व शांति के लिए मन की शांति का होना जरूरी है, और मन की शांति के लिए सबसे कोई अगर उसकी कोई चाबी है, कोई की है, कोई आधार है, तो वो है योग। इतने महारथी यहां पर जब उपस्थित है, मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, अशांति क्यों होती है? अगर शरीर में कोई कष्ट है तो अशांति उत्पन्न होती है। योग में शारीरिक व्याधियों का भी समाधान है, और शरीर से भी ज्यादा आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियां। हमारी मां हंसा जी गर्दन हिलाकर के इसकी सहमति व्यक्त कर रही है, और कोविड काल के बाद में मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में जिस तरह से बेहताशा मनोकायिक बीमारियां बढ़ी है, उनका समाधान योग में है। शरीर, मन और इमोशनल, भावात्मक स्वास्थ्य के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि योग हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है, पॉजिटिविटी को पैदा करता है,
और तमाम प्रकार की हिंसा की समस्या का समाधान योग में मिलता है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, योग हमारी महान प्राचीन विरासत है और उस प्राचीन विरासत के अनेक प्रमाण हैं और उसमें एक प्रमाण, चूंकि मैं जैन परंपरा से आता हूं, वैसे हंसा जी भी हैं, और जैन धर्म के 24 ही तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है, एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं है जो ध्यान और योग की मुद्रा में ना हो। यह हमारा प्राचीन इतिहास है कि योग कितनी प्राचीन विरासत है। और ये बात मैंने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव ने, जैसा अभी डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी ने कहा, मैं साक्षी हूं उस पल का जब वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने, जैसे ये पीछे यहाँ पर हमारे ये आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय का गुंबज है, उसी तरह से कैपिटल हिल के सामने लाखों की जनमेदनी में पूरे विश्व को जो संदेश दिया। और मैंने गुरुदेव को, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था यूएन में, मैं साक्षी हूं उस पल का जब यूएन सेक्रेटरी जनरल बां की मून सहित पूरी दुनिया को गुरुदेव योग करा रहे थे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, गुरुदेव, हमें बहुत आशाएं हैं और पूरी ये हमारी इंडियन योगा एसोसिएशन, जो गवर्निंग बॉडी काउंसिल और जो ये संगठन काम कर रहा है, ये अद्भुत काम है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आइए हम सब मिलकर के ये 25 वर्ष का जो कालखंड है अमृत महोत्सव, इसको योग के माध्यम से, क्योंकि आज कोविड काल के बाद में जो हम नहीं समझा पाए थे वो कोविड के थपेड़े ने समझा दिया। आज पूरे विश्व के अंदर मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, वेलनेस, उसकी डिमांड जिस तरह से बढ़ी है और उसकी आपूर्ति का जिम्मा पूज्य गुरुदेव आप पर और आप सब पर है। मैं तो उसके अंदर एक गिलेरी की तरह उसके अंदर योगदान देने के लिए अहिंसा योग मेडिटेशन सेंटर भी समर्पित भाव से आपके आदेश की पालना के लिए तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। धन्यवाद आचार्य जी। Now I'll request Dr. Ishwar Baswareddy ji to please speak few words. Om Shanti Shanti Shanti। परम पूज्य गुरुदेव और यहाँ उपस्थित सारे आईवाई के परिवार के गुरुजन और सारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम, नमस्कार। This is the almost more than 3.5 decades I am coming to Art of Living. The very first visit I learned one thing: be happy, how to live happy. That teaching and that technology, what Gurudev has taught, I am carrying till today. I am happy till today. How to make that scientifically, Guruji Nagendra ji has taught in the same 80s I used to come. Then Ma Hamsa ji has taught how to practice yoga householdly. Why I am taking these names? You are all sitting before such a legends who lived yoga and who are guiding us with their true experience. That's why there is a strength in their words. Whenever we practice, when we teach, that touches our heart. When it touches our heart, we practice that. That is the yoga is a sadhana. When we do sadhana, that affects. Now, Indian Yoga Association, all gurus, the great masters of Indian yoga masters, are directly or indirectly has been associated with this great organization which was founded in 2008 after 3 years of effort
by all of us. And now, with the Gurudev's chairpersonship, we are moving forward. So now the state chapters, we have a greater responsibility. Now slowly the generation, these I have already saw the seeds. Now the next generation is taking place. Now I am seeing the younger generation is taking up this baton to carry forward this message of Indian culture. Yoga is our culture. To take it forward and so that we can all live happy and healthy. For this, yoga gives knowledge about our body. Yoga gives knowledge about our mind. And yoga gives knowledge about how to unite body and mind. With that thought and action, restraints and fulfillment, ultimately it unites the man with nature, what Honorable Prime Minister emphasized when he addressed United Nations in 2015, September 27th, which leads to declaration of International Day of Yoga. Now the whole world, more than, as Gurudevji was mentioning, more than nearly 2 billion people are practicing yoga in their day-to-day life. Now the responsibility to carry forward this our great culture through this Indian Yoga Association, I do hope we'll do our best and practice yoga, and with that knowledge, we motivate others to practice. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार. Before I ask Gurudev for his blessings on behalf of the Indian Yoga Association, I thank Gurudev for hosting this national conclave at the Art of Living Ashram here. I have heartfelt thanks to all the beautiful souls here from all across the globe who are here to support such kind of initiatives. भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए, राज्यों से आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ. I have heartfelt thanks for the team of the ashram, the School of Yoga, who have really worked day and night to make this event happen. आप सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Request Gurudev to kindly shower his blessings. नवरत्न को पहनना हो तो सोने के बगैर नहीं होता है. कोई भी मोती है, हीरा है, उसको पहनने के लिए सोने का आभूषण की ज़रूरत पड़ती है ना. अब नवरत्न को अंगूठा पहनना हो तो वो सोने का बनता, उसमें फिर नवरत्न जड़े जाते हैं. ऐसे हमारे सुबोध जी स्वर्ण के माफिक सबको जोड़ के, सबको एकत्र करके योग, भारतीय योग संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं. इसका न्यू हमारे बसवा रेड्डी ने रखी है पहले ये बहुत मेहनत कर रहे थे और हम सब के प्रेरणा स्रोत बन के उनका बैठना, उठना, सोचना, खाना पीना सब कुछ योगमय रहा. हमारे डॉक्टर नागेंद्र और इनके बहन जी दोनों जने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग का क्या लाभ है इस पर इतना काम किया, शायद किसी ने काम किया होगा इतना दुनिया में. योग तो हमारे यहाँ सदियों से रहा है, मगर उसको वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक भाषा में भी डालना बहुत आवश्यक रहा, जिससे लोग जिससे इसकी स्वीकृति बने ऐसे देशों में जहाँ पर योग परिचित नहीं है. ऐसे माँ हंसा जी ने, आप सबको पता ही है, आप बड़े प्यार से 3H 5H बोल दिया, आप बोल रहे 5H. मैं उसके साथ 3C आपको बोलता, 3C भी रखे उसको. क्या 3C? क्या? कॉन्टेक्स्ट देखना, जीवन का कॉन्टेक्स्ट, जीवन का संदर्भ को एक विशाल दृष्टिकोण से हम देखते हैं
तो छोटी छोटी बातों में हम उलझते नहीं, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। मैंने हमारा अब क्या छोटी छोटी बातों में लोग इतने दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक महिला, एक लड़की ने मना कर दिया, एक लड़का ने मना कर दिया शादी करने से, तो फांसी लगा लेते। पेड़ में तो फल लटकना चाहिए, आदमी लटक लेते हैं उसको। फल फूल के फलो फूलो अपना गर्दन को लटका के वहाँ चले जाते हैं। क्यों? कॉन्टेक्स्ट नहीं है जीवन का, बहुत सीमित कॉन्टेक्स्ट में हम जीते हैं। खामुखा द्वेष, खामुखा परेशानी, खामुखा एक दूसरे में क्लेश पैदा कर देते। क्यों? हम जीवन को विशाल दृष्टिकोण से नहीं देखते। अरे भाई सबको मरना ही है, मरेंगे सब लोग। अरे जब तक जीते हो जरा मुस्कुराते जियो, प्रसन्नता से जियो, सबको गले लगाते जियो। भाई मुसीबत किसको नहीं हुआ आया है बताओ? श्री राम के जीवन में मुसीबत है, कृष्ण के जीवन में मुसीबत, सब हर अवतार पुरुष के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबत आया। उसका 100 में से एक अंश भी तुम्हें नहीं आया है, ऐसे देखोगे तो छोटी सी बातों में हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये योगी का लक्ष्य नहीं होता। योग का लक्ष्य ही है ये हेयम दुःखम अनागतम, दुख आने से पहले उसको रोक दो, ये योग है। और दुख कई तरह से आती है। कैसे? शारीरिक दुख, क्यों? जब चाहे तब खाए, कोई नियम नहीं है, संयम नहीं, कुछ भी खाते रहेंगे, कभी भी खाते रहेंगे। इसलिए पहले तो शरीर झेलेगा, फिर बाद में टूटने लगता है, दर्द पीड़ा होने लगती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग करिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुशलता हमारे में कम हो जाती है जब हम तनाव से हो जाते हैं, विशाल दृष्टिकोण नहीं होती, तो कुशल नहीं होते हो तो किसी भी व्यवहार में आप सफल नहीं हो सकते हो, उसमें श्रेय नहीं मिलेगा आपको। व्यवहार कुशलता के लिए, बिहेवियर साइंस के लिए भी योग का इतना बड़ा योगदान है। व्यवहार कुशलता, कर्म में कुशलता लाने में भी योग का काम है। फिर वाणी में मधुरता। ऐसे मुंह खोलते तो ऐसी ऐसी चीजें निकलती है जिसका दूसरी जगह से निकलना चाहिए, मुंह में निकलते वो सारे गाली गलौज और जो भी अन्य, आप समझ रहे हैं, मैं तो बोलूंगा नहीं वो सब बातें। कुछ काम नहीं बने तो ऐसी बातें मुंह से निकलता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ऐसी चीजों को हमारे मुंह से निकालना नहीं चाहिए। वाणी की शुद्धता आती है, वाणी में मधुरता, स्नेह, बुद्धि में समझ, तीक्ष्णता। तीक्ष्ण बुद्धि बहुत आवश्यक है जीवन में प्रगति पाने के लिए। इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत योग का बहुत आवश्यकता है। क्यों? उनको केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। मन सूक्ष्म हो तो वो गुणग्राही होती है मन। संवेदनशील मन के लिए चाहिए, मन को संवेदनशील बनाता, हृदय को कोमल बनाता। करुणा जिसके जीवन में नहीं है, ये दूसरा चीज करुणा जिसके जीवन में नहीं है, कंपैशन जिसके जीवन में, वो जीवन ही नहीं है। आप देखो कुत्ते बिल्ली में भी इतने करुणा होते हैं, क्रूर मृग में भी करुणाएं होती हैं, मनुष्य में करुणा नहीं है तो फिर वो क्या जीवन है। तो कॉन्टेक्स्ट एक हुआ, फिर करुणा। करुणा माने हम समझते सिर्फ दूसरों के ऊपर दया करते हैं, वही नहीं, तुम अपने पर भी करुणा करो, अपने पेट पर भी दया करिए, बहुत ज़्यादा उस पर नहीं घुसाएंगे।
अपने जोड़ों पर भी करुणा करिए, थोड़ा उसको मोड़ना करना करते रहिए, उसको थोड़ा काम देते रहिए। ये तीसरा है कमिटमेंट, निष्ठा। कोई चीज हाथ में लेंगे तो उसको करना, पूरा करना चाहिए। बद्धता, प्रतिज्ञाबद्धता, चाहे 100 बार टूट जाए कोई हर्ज नहीं, फिर शुरू करो। 2, 3, 4 बार आप कोई भी प्रतिज्ञा लेते हो, टूटता है मान लो, इससे उदास होकर छोड़ना नहीं, फिर प्रयत्नशील रहना। अब इसी को अभ्यास कहते हैं। इसीलिए अभ्यास को ही यही कहा, नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। उसको अभ्यास करते जाओ, अंतर मत छोड़ो, लगातार करते रहो। इस तरह से जीवन में कमिटमेंट हो। कोई भी कमिटमेंट ना हो तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मान लो आपने कोई कुर्ता सिलाने के लिए, कोई ब्लाउज चोला सिलाने के लिए टेलर को दिया, आपने मेरे को बस दिवाली तक चाहिए, वो दिवाली नहीं, अगले आपको गुड़ी पड़वा में देने के लिए आ जाए तो क्या करोगे आप? आपका जीवन औरों के कमिटमेंट के ऊपर है कि नहीं? भाई किसी का कमिटमेंट के वजह से तुमको दूध मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी में स्विच ऑन, वहाँ मेन स्टेशन वाला गया ही नहीं, वहाँ ऑन ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है, तो तुम्हारा जीवन के अंधेरे में हो जाए। तो हम जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, उन सब का किसी न किसी के ऊपर कमिटमेंट होता है। आपके ड्राइवर हो, स्कूल टीचर हो, आपके डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर बोलता है कि अरे मेरे को आज आलस्य है, पता नहीं 2 दिन बाद देख लेता हूँ, क्या होगा तेरा? चलेगा नहीं, जीवन कमिटमेंट के बगैर चलेगा नहीं। तो इसलिए वो कमिटमेंट हमारे भीतर है क्या, ये हमें देखना है, परखना है। ये योग है, ये योग में सहज ही प्राप्त होता है। कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंपैशन, 3 C। अच्छा, फिर हमारी जो योग की परंपरा है, इसको हमें अक्षुण्य बनाए रखना, मगर इसका जो मूल रूप जैसा है उसको वैसे रखना। अभी हम बाहर विदेश में थे, अमेरिका में थे, तो वहाँ डैलस में एक योगा टीचर आई थी, बहुत नामी योगा टीचर थी। वो बोल, मैंने कहा, उन्होंने बताया नामी योगा टीचर करके, मैंने बताया माँ का आप क्या करते हो? उन्होंने बोला हम सारे सेलिब्रिटीज़ को योगा सिखाते हैं, मगर हम योगा को सैनिटाइज कर दिया इन्होंने, पूरा सैनिटाइज करके सिखाते हैं ताकि हमारे कल्चर के साथ वो जमता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। सैनिटाइज करना माने क्या? उसमें ओम निकाल देना, उसमें और भी सूर्य नमस्कार को सूर्य नमस्कार नहीं बोलना, आसन का नाम नहीं बोलना, वो मंत्र वगैरह जो भी है, जो हिंदुस्तान का निशान है उसमें, उन सब को हटाने के लिए इसको कहते हैं सैनिटाइजेशन। हमने कहा ठीक है, आपके एप्पल कंप्यूटर को भी हम सैनिटाइज करते हैं, हम बनाना कंप्यूटर बना देंगे। आपके देश में से एप्पल होता है, हर कंप्यूटर के ऊपर एप्पल लिखा है कि नहीं? हम भी सैनिटाइज करेंगे भाई इसको, हम बनाना कर देते हैं, हम तो खेला। आपको ये मंजूर है क्या? बस अरे भाई, जिन्होंने ऋषि मुनियों ने ओम अपना पहचान के रूप में दिया, तस्य वाचक प्रणवा, जिस ईश्वर जिससे सारा संसार बसा है, जिससे बना है, जो संसार ईश्वर का ही रूप है, उस ईश्वर का वाचक है प्रणव। अब वो ओम बोलने में आप इतना इतना उनको, हाँ, ओम बोलने में इतना उनको ऑब्जेक्शन है।
ओम को इनकार करते हैं, तो कैसे ये चलेगा? मैंने कहा ये दिस इज नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मण सर, दिस विल नॉट ब्रिंग दैट एनर्जी बैक। ऐसे दिस इज प्लीज डोंट डू दैट। हमने कहा अब बीर योगा शुरू कर दे किसी ने कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये सब करते हैं कि ये गुट बीर पियो और एक आसन करो, इसको बियर योगा। और कोई बोलता हॉट योगा क्या है? इतना गर्म पैदा करके कमरे में शरीर को पीड़ा देना, ये योग है क्या? अब ये सब करके फिर एकदम कोई नई चीज़ है ना, लोगों को बता अच्छा ये तो कोई नई चीज़ है भाई। आसानी से जो मिल जाता है वो लोगों को, उससे लोग अहंकार राजी नहीं होता। अहंकार के लिए बहुत कष्ट करके कुछ पाएंगे। जो यहाँ से सीधा ट्रेन में बैठ के जाने में अहंकार नहीं मानता। अहंकार मानता है अरे मैं पैदल चलूँगा, बाइसिकल में जाता हूँ, दुनिया में सेलिंग बोट में जाऊँगा। ठीक है सेलिंग बोट में जाओ, कोई हर्ज नहीं है, मगर ये सिर्फ अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हो या किसी और कारण से कर रहे हो, तपस्या के रूप में करें। अब हमारे वारकरी संप्रदाय से आए हैं सारे सज्जन, हमारे संत गण, एक संत व्यक्ति हैं ये भक्ति की लहर लेके चलते हैं पैदल, ये अलग बात होती है। ये तपस्या करते हैं अपनी तपस से, ये भी योग है, भक्ति योग है। इस तरह से योग के ये सभी अंग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब अंग माने क्या? एक ही मेज के अलग अलग पहिया हैं। कोई भी एक पहिया खींचो तो सारे साथ में आ जाएंगे। ऐसे जीवन में ये रखना चाहिए, इसको मूल रूप को विकृत नहीं करना चाहिए। इसीलिए योग जो संस्था है ये सबको अलग अलग, हमारे देश वैविध्य, योग में भी वैविध्यता है, इन वैविध्यता के साथ साथ उसके मूल जो सिद्धांत है उसको सुरक्षित रखना भी इसका काम बना रहा है। और जैसे महाराज जी ने बताया, विवेकानंद मिशन ने बहुत काम किए। रामकृष्ण मठ ने भक्ति योग से, जिस एक सुर से सब बैठ के गाते हैं, ज्ञान में रुचि लेते हैं, सहजता से आसानी से बैठ के करते हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं करना है अपने को। सो शरीर का शोषण योग नहीं है, शरीर को सताना योग नहीं है, नाक को पीड़ा देना योग नहीं है। आचार्य शंकराचार्य ने यही बताया, यदि तुम ज्ञान के साथ नहीं चलते हो तो ये नाक को देने वाली पीड़ा है तुम्हारे जो अभ्यास जो है। सो वो हार्ट के बिना जो अभ्यास करते सिर्फ हेड से, वो ऐसे हो जाता है, सो निरर्थक होते हैं। लोकेश मुनि जी जब बोलते हैं तो सब मंत्रमुग्ध होके घंटों सुनते हैं और सबको हंसाते भी हैं, उनका काम है। मैंने कहा कि आप जब आते हो आप नहीं हंसाते हो तो आपको टैक्स लग जाएगा। देखिए कर्म का अपना फल है। एक बार एक छोटी सी कहानी के साथ हम आज समाप्त करते हैं। हाँ, बलि चक्रवर्ती, आप तो जानते हैं, आज केरला से भी काफ़ी लोग आए हैं इधर। बलि चक्रवर्ती एक बड़ा श्रेष्ठ राजा था, जो जो मांगे उनको वो दे देते थे। इससे कुछ लोगों को पीड़ा तो होती थी, खासतौर से देवताओं को ज़्यादा पीड़ा हुई। उन्होंने विष्णु के पास हाथ जोड़ के बोला, अरे भाई कुछ तो करिए आप। तो वो तो आपको पता है कहानी, त्रिविक्रम बन के उन्होंने आसमान ज़मीन सब नाप लिया। और इस बीच में इनको समझ में आया, अरे भाई देने वाला मैं कौन हूँ, दे दें तो वही भगवान मेरे सिर पे हाथ रख, मेरे सिर पर पाँव रखो। तो भगवान उनके सिर पर पाँव रखे उनको पाताल भेज दिए। पाताल भेज दिए तो सही, फिर उनका वर भी उन्होंने कहा कि मैं
अपनी प्रजा को देखने साल में एक बार आ जाता हूँ। हाँ हाँ, 15 दिन के लिए आप आ जाओ हर साल। तो आज भी ओणम तिरुवोणम करके, ओणम उनके लिए वो त्योहार है। तो एक बार नारद मुनि नीचे पाताल लोक गए, वहाँ वामन द्वारपाल बन के खड़े, बलि चक्रवर्ती के द्वारपाल का सेवा दे रहे थे। वो बोले, अरे भगवान आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो भगवान ने बोला, अरे मैं 3 कदम जमीन इनसे मांग लिया, अब इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। इनसे मैंने ले लिया 3 कदम, अभी मैं इनके लिए ऋणी हो गया हूँ, तो इनका सेवा मैं कर रहा हूँ। इसलिए आपके पास सद्गुण हो तो लगता है थोड़े समय के लिए मेरे लिए जो मैंने किया उसका फल नहीं मिल रहा है, इस तरह से नहीं, दुखी मत होना, भगवान आपकी सेवा करेंगे। जहाँ भाव होता है, भक्ति होती है, तो ईश्वर आपके सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए साधना, सेवा, सत्संग, ये तीनों जीवन में आवश्यक है। ये तीनों का संयोग योग है, और या योग से ये तीनों का संयोग होता है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर ज्ञान योग, भावना के तौर पर भक्ति योग, और ये सब समग्र रूप से योग की प्रणाली है। यहाँ इतने सारे योग शिक्षक हमारे देश के कोने कोने से आए हो, आप सब ऐसे योग की प्रचार प्रसार करते रहिए। हमसे किसी ने पूछा आप क्या सोचते, मैंने कहा कोई भी कर्म के लिए कोई तो कंपटीशन की ज़रूरत है, स्पर्धा की ज़रूरत है। आज तो 3 स्टेट को अवार्ड भी मिला, कर्नाटक का पहला, सुबोध जी, और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जब पास के सब स्टेट में तीनों को मिल गया। स्पर्धा की आवश्यकता है, स्पर्धा हो तो हम कहेंगे हम कुछ ज़्यादा करेंगे। मैं कहता हूँ स्पर्धा अच्छा है, मगर आपकी स्पर्धा पता है किसके साथ होनी चाहिए? सेल फोन के साथ होना चाहिए। दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों के पास सेल फोन है, मगर योग अभी कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ 200 करोड़ तक की जो पहुँचा। 8 मिलियन में से हम 2-2.5 मिलियन लोगों तक पहुँच गए हैं। अब हमको इसको चौगुना करना है, सेल फोन से हमें कॉम्पीट करना। जो सेल फोन भी नहीं जानता वहाँ तक हमें पहुँचना है। ताकि सेल फोन स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, मगर योग उनको स्वास्थ्य प्रदान करता है। इस बात को आप लोग रखिए। आपस में, योगियों के आपस में कोई स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। योगी और अयोगी के बीच में स्पर्धा होनी चाहिए, और जीतोगे योगी ही। इसमें ये भी सुनिश्चित है, योग हमें योग्य बना देता है जीवन के लिए, समाज के लिए, अपने लिए और परमात्मा के लिए। बस इतना ही आज। ओम शांति शांति शांति। मेरे ख्याल से आज प्रश्न की जरूरत नहीं है, कोई प्रश्न उत्तर सब। हाँ, फेलिसिटेशन अनाउंसमेंट, हाँ हाँ वो तो करें। श्री साई बालाजी प्रतिष्ठान अहमदनगर की ओर से अखंड हरिनाम सप्ताह बेंगलोर आश्रम में हो रहा है। इनकी तरफ से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया जाना है। महाराष्ट्र के कीर्तनकार और वारकरी संप्रदाय की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। Akhanda Harinam Week is being organized at our Bangalore ashram on the behalf of Sri Sai Balaji Pratishthan Ahmednagar. Pujya Gurudev is being honored on their behalf by Kirthankar and Varkari sect of Maharashtra.
माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 बाप आणि आई माझे विठ्ठल रकुमाई माझे विठ्ठल रकुमार. ओ माझे माहेर पंढरी भीमरीच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 माझी बहीण चंद्रभागा माझी बहीण चंद्रभागा करितासे तापभंगा करितासे पापभंगा करितासे पापभंगा करितासे पापभंगा. ओ माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. एक जनार्दनी शरण आ आ आ एक जनार्दनी शरण एक जनार्दनी शरण एक जनार्दनी शरण जनार्दनी शरण कही माहेराची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेराची आठवण करी माहेरची आठवण करी माहेरची आठवण. हो माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. माझे माहेर पंढरी आहे भीमरीच्या तीरी. हरी विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 ठाण विठ्ठल दिंडी विठ्ठल ठाण विठ्ठल दिंडी विठ्ठल तोंडी उच्चारा विठ्ठल गवग्या पांडवला विठ्ठल भोला विठ्ठला विठ्ठल भोला विठ्ठला माझे मायद पंढरी
आगे भीमलीच्या दिवे मागे मागे रे पंढरी आगे भीमलीच्या दिवे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण 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 जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे 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 जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे ओम नारायण 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 जय जय राधारमण हरि बोल 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 जय जय